लगता कि ये गठबंधन ਟੁੱਟਣੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਇਨ ਆਰ ਫੇਵਰ। ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਅਲਾਇੰਸ ਐਂਡ ਵੀ ਬਿਕੇਮ a junior partner. Now that role will be reversed. जो सिंह सिद्धू अभी भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 36,000 नौकरी क्या पक्की हुई, सस्ती रेत हुई। एक सवाल पूछ सकता हूँ, आपको ये एंटरटेनमेंट एंजॉय नहीं करते आप जो सिद्धू साहब करते रहते हैं? पंजाब की जो समस्या हैं वो तो आप जानते हो, एक बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पे सेंसिटिव सिक्योरिटी सिचुएशन है और जिस तरीके से और पिछले कुछ हफ्तों में जो यहाँ पे इंसिडेंट्स हुए हैं वो चिंता देते हैं। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्रीकाल जी। ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਕਸਦ? मैं तो मत्था टेकने आया। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ 1 ਜਨਵਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਟੂਰਿੰਗ ਜ਼ਰਾ ਘਟ ਗਈ ਸੀਗੀ ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰਚ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਐਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 117 ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆંકੜੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜੇ ਕਿਸੇ ਵਾਰ 23 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਕਦੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਕਤ 2 MLAs ਹੈਗੇ, ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 5% ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ 117 'ਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੋਏਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਲੜਨਗੇ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਠਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਇਨ ਆਰ ਫੇਵਰ। ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਅਲਾਇੰਸ ਐਂਡ ਵੀ ਬਿਕੇਮ a junior partner. Now that role will be reversed. Bharatiya Janata Party is asserting itself और मनु तो अमृतसर आए थोड़े घंटे हुए ने, मैं जो माहौल देख रहा उते कॉन्फिडेंस हैगा, उत्साह हैगा तो मनु पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों ये जो पॉजिटिव एटमोसफेयर है ये होर शक्ति पकड़ेगा। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ ਹੈ? पंजाब की जो समस्या हैं वो तो आप जानते हो, एक बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पे सेंसिटिव सिक्योरिटी सिचुएशन है और जिस तरीके से कुछ ऐसे मामले जो हल हुए हैं और पिछले कुछ हफ्तों में जो यहाँ पे इंसिडेंट्स हुए हैं वो चिंता देते हैं एंड मैं समझता हूँ कि हम में से सब जो हैं जिनको नेशनल सिक्योरिटी के बारे क्लैरिटी है और स्टेट का फ्यूचर, स्टेट के वेलफेयर के बारे हमारे को चिंता रहती है, तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने या भारतीय जनता पार्टी इस सरकार में शामिल हो उससे बहुत स्टेट का फ़ायदा हो सकता है। और मोदी जी ने देखिए आप पिछले 7-7.5 साल में जो केंद्रीय योजनाएं रही हैं वो कई स्टेट्स में लागू ही नहीं की गई। जैसे मैं बताता हूँ आपके एक उदाहरण आपको दे सकता हूँ, आयुष्मान भारत है, वो एक परिवार में एक वर्ष में 5 लाख रुपए की सुविधा थी है कि दवाइयों के लिए, इलाज के लिए, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए
बहुत साल ये पंजाब में इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई स्कीम। हमारी और कई योजना है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें हमने ऑलरेडी केंद्र की तरफ से 1 करोड़ 13 लाख 14 लाख आवास सैंक्शन किए हैं। कई स्टेट्स में बहुत इसका फ़ायदा हुआ है। उत्तर प्रदेश में मैं बता रहा हूँ, जब 17 महीने अखिलेश जी की सरकार है, टोटल डिमांड आई 17,000 की, और उन योगी जी के पहले 17 महीने में 17 लाख हो गया वो। तो यहाँ पे भी कई हमारी केंद्रीय योजनाएं हैं जो मैं समझता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि ये लैंड स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो हमारी जो केंद्रीय योजनाएं होती है उसके तहत हम कुछ कंट्रीब्यूशन देते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को भी देना पड़ता है। स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे पाती या कोई कारण होते हैं। तो पुरी साहब, आपको क्या लगता है, वर्ष 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो घोषणा की गई थी कि स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे, लेकिन पंजाब में अगर अमृतसर की बात की जाए, हालात सबके सामने हैं। लुधियाना में स्मार्ट सिटी कमी कहाँ है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट? नहीं, देखिए ऐसा है, स्मार्ट सिटी को शायद आपको उसकी परिभाषा देखिए, 2 किस्म की स्मार्ट सिटीज़ होती हैं। एक होती है कि जो ग्रीन फील्ड होती है, जो बिल्कुल नया शहर बनता है, जैसे नया रायपुर है। कुछ होती है ब्राउन फील्ड। अब ब्राउन फील्ड में एरिया बेस्ड डेवलपमेंट होती है, उसमें प्रोजेक्ट्स होते हैं और प्रोजेक्ट्स वो पहले आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें केंद्रीय सरकार नहीं करती इसको, ये स्टेट गवर्नमेंट जब इसको कंपटीशन के लिए भेजा था 2015 में, वो तय करती है। और फिर कंपटीशन था, उस कंपटीशन में 100 शहर चुने गए। स्मार्ट सिटीज़ मिशन देश भर में तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसमें अभी जो है ना, कोई जो प्रोजेक्ट्स टेंडर्ड हैं वो 90% से ज़्यादा टेंडर हो गए हैं। पर स्मार्ट सिटी बनाने में भी 5 साल लगते हैं, क्योंकि इसमें सिटीज़ अलग अलग समय पे घोषित की गई हैं। पहली जो थी वो 2016 जनवरी में थी, और जो अखीरली हैं वो 2028 में। सो 2016 वाली जो हैं, जो पहले राउंड में थी, उनमें तो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बन गया। 100 स्मार्ट सिटीज़ हैं हमारे, ऑलरेडी 75 में कंट्रोल और कमांड सेंटर बन गया है इंटीग्रेटेड। और महामारी के दौरान भी दे एक्टेड लाइक वॉर रूम्स, बहुत अच्छा काम हुआ। पंजाब की क्या सिचुएशन है मुझे पता नहीं, बिकॉज इसमें ये तो स्टेट गवर्नमेंट और हम भी मॉनिटर करते हैं, पर मैं अगले दिनों में इसको मॉनिटर करके आपको बता दूंगा। पुरी साहब, नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी लगातार आपस में जो है, पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया, वो बीजेपी के साथ उनका गठबंधन होने जा रहा है, तो नवजोत सिंह सिद्धू अभी भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 36,000 नौकरियाँ क्या पक्की हुई, सस्ती रेत हुई? एक सवाल पूछ सकता हूँ, आपको ये एंटरटेनमेंट एंजॉय नहीं करते आप, जो सिद्धू साहब करते रहते हैं? कभी वो कहते हैं कि वो इमरान खान बहुत वो है। याद है जब हम लोग गए थे वो गुरुद्वारा करतारपुर साहब, तब भी वो जफ़ी डाल के मिल रहे थे। कभी कुछ बयान दे देते हैं, कभी कुछ दे देते हैं। तो मैं समझता हूँ मेरे लिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। मैं समझता हूँ सर, एक सर लास्ट वाला, आपने जैसे कहा है कि अब पहली बार श्रोमणी अकाली दल बादल के साथ थे आप, तो आपको नुकसान उठाना पड़ा। प्रकाश सिंह बादल लगातार ये कह रहे हैं कि एक क्षेत्रीय पार्टी है, केवल एक ही है, वो श्रोमणी अकाली दल। अब बीजेपी के खिलाफ वो भी बोलने लगे हैं, जबकि गठबंधन काफी। मेरे को नहीं लगता कि अकाली दल वाले बीजेपी के खिलाफ कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा। आपकी और मेरी असेसमेंट शायद अलग है, वो अलग से बात करूँगा आपको। तो सर एक लास्ट सवाल है, ये ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आओ और जेड सिक्योरिटी पाओ, जिस तरह ये जेड किसी एक व्यक्ति को मिल गई जेड सिक्योरिटी, तो भाजपा में आने का ये नहीं है। भाजपा में इसलिए आ रहे हैं कि उनको कुछ लगता होगा। अब वो जो मैं कोई एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, पर जो लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं, लंबी लाइन लगी हुई है। अब मेरा तो ये नहीं काम है कि मैं आपको इसके बारे सूचना दूं, आप खुद देख लेंगे। सर एक सर लास्ट सवाल है सर, क्या और लोग शामिल हो? ये थे हरदीप सिंह पुरी। ये देखिए आज आए हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ, उन्होंने मीटिंग की है। पहली बार श्रोमणी अकाली दल से अलग होकर भाजपा चुनाव लड़ रही है। मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनकी ओर से नई पार्टी बनाई गई है पंजाब लोक कांग्रेस, उनके साथ इनका गठबंधन हुआ। इनका ये दावा है कि भाजपा की सरकार इस बार वर्ष 2022 में भी बनेगी, यदि पंजाब में भाजपा की सरकार बनती है, क्योंकि सेंटर में भी भाजपा की सरकार है। इससे लोगों को खासा फायदा होगा। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।